इस पूरे इंटायर लेक्चर में हम मेंस की पेपर पर बात करेंगे एंड स्पेशली माय डिस्कशन विल बी द नेक्स्ट 3 years of mains question paper 16, 15 and 14. Before it guys, two videos, even those lecture numbers 27 and 27 I made it. Here I discuss with you 21 and 20 mains question paper. Later on I explain with you 2019, 18 and 17. So overall 5 years question paper of mains science and tech already over, and here I'd like to discuss you 3 more years question papers in lecture number 21. In lesson 21 mein again the topic of discussion the same, approach of science and tech in UPSC mains, and somehow I'll tell you guys like these 3 years question paper of will help you to understand about the demand of UPSC in mains examinations. सो चलिए बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आपने अगर लेक्चर 27, 28 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। इससे आपको क्या हो जाएगा 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड 14 यानी कुल 8 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके मेंस के साइंस टेक के मेरे साथ डिस्कशन हो जाएंगे, जो आपके लिए मेंस की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और फिर मैं बता दूं आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर्स पूरी तरह से कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। और जैसा कि मेरी क्लास में हमेशा कोशिश होती है, आइदर आई एम टेकिंग द क्लासेस ऑन प्लस हियर ऑन द लाइव सेशंस, या मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी जगह पे जो फेस टू फेस क्लासेस दी हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको लॉजिकली चीज़ों को समझाऊं और आप फैक्ट ओरिएंटेड होकर एग्जाम्स में ना जाएं। फैक्ट्स कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में उसकी ब्यूटी हो सकती है, उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को प्रूफ करने का एक तरीका हो सकता है, बट फैक्ट इज़ नॉट द थिंग्स दोज पीपल यूज ओनली इन योर आंसर राइटिंग। वो आपका आंसर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस आंसर राइटिंग सेशन विद द पेपर डिस्कशन ऑफ 16, 15 एंड 14. So before going to start this lecture guys, I would like to introduce myself. My name is Dr. Javed Grahari and I have done my PhD from IIT Delhi. I'm a director of Purvanchal IS as for face-to-face classes at Gorakhpur, Uttar Pradesh. All the Delhi-based faculties are coming and taking the face-to-face classes there. I'm taking your classes for science, tech and environment. From last 18 years, I'm taking your classes in this UPSC segments, and 1,000 plus students already got selected in civil services examinations. My 2 books are published. The one is Science and Technology, the second is Environment by McGraw-Hill Publications. And the Science and Technology book is a highly selling book in India. So don't miss it to read this book, guys, with my all the entire discussions. This is my Telegram group where you people can find out all the PDFs. Those I share there. A part of my Unacademy profiles, जहाँ पे मेरे पूरे Unacademy की प्लस की क्लासेस होती हैं, और इसके अलावा जो स्पेशल की क्लासेस होती हैं, ओके, दोज आई एम मेकिंग फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पर बायोलॉजी लेसन आई एम टेकिंग यू फॉर ऑल द इंटायर डिस्कशन, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेरा यूपीएससी कोड है रवि यूपीएससी, जहाँ पर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते समय से यूज़ करेंगे, देन यू विल गेट सम कंसेशंस। इवन ये एजुकेटर्स हैं, दोज आर द अनअकैडमी हाईली प्रोफाइल्स, even experienced educators, they are available at one platform on Unacademy, that all the entire classes will really be very beneficial to all of you. So join this Unacademy and get this benefit to all of you guys to listen all the experienced faculties at one platform. There's a UPSC Science and Technology practices, so as a quiz, as an interest, with 15 questions and 15 minutes you must have to solve in every Wednesday with me at 4 p.m. So join me guys, enroll now here with the Ravi UPSC course. So I'm connecting with you guys. It's a kind of fun with all of you. Especially you will have a more and more interest in the science and tech with me in this entire practice sessions. So this is the approach of science and technology mains examinations. And before going to start this all the mains sessions and all, I'd like to discuss with you guys about first you people see your syllabus. तो syllabus आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका सिलेबस है यूपीएससी मेंस का। इसके पहले भी जो 2 लेक्चर्स मैंने लेक्चर्स 27, 28 लिया है, सो मैंने आपको सिलेबस ज़रूर दिखाया है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So what about the syllabus? You listen guys, science and technology developments, science and technology developments and their application and effects in everyday life, achievements of India in science and technology, indigenization of technology and developing new technology, next awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, issues related to intellectual property rights. तो ये 2 पैराग्राफ्स में आपके सिलेबस हैं, और इन्हीं पैराग्राफ्स पे सिलेबस को आपको लेके देखना है। फिलहाल इन सिलेबस में आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है, जैसे पीछे के लेक्चर्स में आपने देखा पार्टिकल फिजिक्स वगैरह कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मेंस में भी आते हैं, फाइन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और ऐड करनी होती हैं, जो मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में बोला था। टोटल 11 चैप्टर्स यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द साइंस एंड टेक, आइदर यू आर गोइंग फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। वो 11 चैप्टर्स मैं आपको लास्ट में फिर दिखा दूंगा, ठीक है।
चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2016 मेंस क्वेश्चन पेपर। 2016 का पहला जो मेंस क्वेश्चन पेपर है, यू कैन सी हियर गाइस, गिव एन अकाउंट ऑफ द करंट स्टेटस एंड टारगेट्स टू बी अचीव पर्टेनिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी सक्सेस इन द कंट्री। देखो, करंट स्टेटस जो है वो आपको हर साल अपडेट करना होगा। ओके, यू मस्ट हैव टू अपडेट एवरी ईयर। ओके, यू मस्ट हैव टू अपडेट एवरी ईयर। तो अब ये अगर आप पूछोगे कि सर 2016 का क्या था, तो आई विल टोटली टेल यू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप यूपीएससी पेपर मेंस देने जाते हैं या ओवरऑल प्रीलिम्स देखने जाते हैं, तो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि फरवरी मार्च में आपका एक इकोनॉमिक सर्वे आता है ना। तो उस इकोनॉमिक सर्वे में आपके पास एक चैप्टर होता है, उसको हम कहते हैं एनर्जी। ओके, उस एनर्जी चैप्टर को इकोनॉमिक सर्वे में प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, वहाँ पर आपको स्टेटस दिया होता है। इवन इन एवरी ईयर गाइज, जब भी मैं अपनी बुक को अपडेट करता हूँ तो मैं इकोनॉमिक सर्वे के उस डेटा को जरूर चेक करता हूँ, ठीक है, कि आज अभी स्टेटस क्या चल रहा है। तो वो आप खुद देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में आज का स्टेटस क्या है। तो फिलहाल पीछे की बात करना है यहाँ पर, दिस इज अ टोटली वेस्टेज। और ये भी मैंने बता दिया, आगे आप ईयर्स में आने वाले हर साल के इकोनॉमिक सर्वे, जैसे यू आर गोइंग फॉर 2021। ओके, सो 2022 के प्रीलिम्स और मेंस में अगर आप जा रहे हैं तो फरवरी मार्च में जो 2022 में इसका इकोनॉमिक सर्वे आता है, उससे आपको अपडेट देख लीजिए। फाइन, ये हमेशा देखें। आप 23 में जाते हैं तो फरवरी मार्च के इकोनॉमिक सर्वे से देखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन गाइस। तो ये वाला पार्ट तो मैं टोटली छोड़ता हूँ कि आज रिन्यूएबल एनर्जी में कुल कितना करंट स्टेटस है, ठीक है। लेकिन आपको ये व्यू मैंने दे दिया कि इस टॉपिक को आप कैसे करेंगे। टारगेट्स अगर बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज व्हाट एवरीबॉडी नो। ओके, यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, दोज आर इनएग्जॉस्टेबल मतलब दे विल नेवर लॉस। और ये वही होते हैं जिनको यू पीपल कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, है ना, अगेन एंड अगेन। और ये ऐसे होते हैं जिनसे आपको पोल्यूशन हैव अ नो पोल्यूशन और मिनिमम पोल्यूशन। तो वो सारी की सारी चीज़ें यू गेट इन द केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब बात ये करी इसका टारगेट क्या। देखो, ऐसा है, टारगेट भी अगर आप 2016 में देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग टारगेट अलग अलग टाइम में आते हैं, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अगर आपको बात करूँ तो MNRE ने 2015 का टारगेट बनाया था, ठीक है। MNRE ने 2015 का टारगेट बनाया था कि ऐसा है, 2015 में टारगेट बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने कि भाई 2022 तक हम 175 गीगावाट जो पावर जनरेशन होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से कर देंगे, ठीक है। 175 में इन्होंने बोला था कि 100 गीगावाट वी विल गो थ्रू द सोलर एनर्जी, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से कर देंगे। 60 गीगावाट जो हम होंगे उसको पहुंचा देंगे किससे, 60 गीगावाट वी विल अचीव थ्रू विंड एनर्जी। उसके उन्होंने कहा था 10 गीगावाट जो होगा वो बायोमास एनर्जी से कर देंगे। सो 10 गीगावाट दे वाज प्लानिंग फॉर बायोमास एनर्जी। और 5 गीगावाट जो था दैट वी विल गो थ्रू द हेल्प ऑफ स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ठीक है। ये चार जो थे इनके बेसिस 175 गीगावाट वाज द टारगेट। बट होता क्या है, चलता है अब 2022 तो खत्म है, वी आर इन द 2022 ऑलरेडी। अब यहाँ पर अभी देखो बाद में ये टारगेट आता है कि हम 2022 को एक्सटेंड करने वाले हैं और 2030 में ले जाकर हम इसको कितना टारगेट करने वाले हैं, इसको हम 450 गीगावाट कर देंगे, ठीक है। 450 गीगावाट का दें। पर अभी देखो जैसे ही ये टारगेट आता है बाद में चेंज होता है, ठीक है, 21 में, क्योंकि 22 अगले साल होता है। अब तो हम 22 में आपको लेक्चर ही बना रहे हैं, ठीक है। फिर असल में क्या होता है, ग्लासगो में क्या होता है, मोदी जी COP26 मीटिंग में जब होते हैं तो वो कहते हैं देखो हम लोग जो ना वो टारगेट जो है वो MNRE का था, है ना, ओवरऑल जो 2030 का टारगेट 450 था वो अब 500 गीगावाट होगा। तो कहने का मतलब है कि आज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि हम क्या टारगेट अचीव करने वाले हैं, तो 2030 में हम 500 गीगावाट को अचीव करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ तक कि इंडिया का टारगेट है कमिंग फ्यूचर है 50% पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आने वाले। तो कहीं ना कहीं दिस इज द करंट अपडेट्स जो आपको जोड़ना होगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ना आज के रेफरेंस में आपको बता दिया ताकि जो भी स्टूडेंट दे आर गोइंग फॉर 2022 एंड 23 वो इस अपडेट्स को देखेंगे। और इसके अलावा याद रखिएगा, इसमें और कोई नए अपडेट्स होते हैं तो दोस्त अब आपको करते रहेंगे करंट अपडेट्स ऑलवेज। लेकिन मैंने आज तक वीडियो बनाते बनाते अपलोड करते करते जो लास्ट अपडेट था वो मैंने आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में है, इसी के साथ दूसरा पार्ट है कि डिस्कस इन द ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स के क्या क्या ब्रीफ इंपॉर्टेंस है आपको बताना होगा। देखो ऐसा, एक तो लाइट एमिटिंग डायोड्स को लेकर 2015 में DLP लाया गया। DLP शायद आपको पता होगा, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। बाद में 2015 के बाद 2016 में इसको एक नया चेहरा दे दिया और नया चेहरा देकर इसका नाम रख दिया उजाला।
ओके, उजाला, ये जो DLP वगैरह था ना स्ट्रीट लाइटिंग के लिए था, उजाला भी देखे है ना, UJAL है, जिसका पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, और ये 2016 में जाकर DLP 2015 में था, है ना, उजाला जो था वो 2016 में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा हाउस होल्ड यूजर स्ट्रीट लाइटिंग को लेकर था, और काफ़ी हद तक इसका जो प्रोविजन था वो यही था, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। क्योंकि आज जो आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, अगर ज़्यादा पावर कंजम्पशन वाली बल्ब लोगे तो ज़्यादा कोयला जलाना होगा, ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सस्टेनेबल हो गया और काफ़ी हद तक एनर्जी कंजर्वेशन से भी जुड़ा रहा। तो ये एक आपको एक इंपॉर्टेंस मैंने बोला, दैट इज अ नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये आप ध्यान रखोगे दोस्त, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट है। और आपको यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को लिखते समय यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ प्रोग्राम्स, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम DLP जो 2015 में लाया जाता है, और उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल जो 2016 में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो 2016 में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इसके पहले भी 2 टाइम्स पहले भी रिपीट हो चुका है ना, रिपीटेड, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। तो यानी ये तीसरी बार में आपको पिछले 20 साल में तीसरी बार एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इसका मतलब ये आगे भी क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन की तरह इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन 15 साल में 3 बार आ चुका है तो इसका मतलब वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट है। और सुनो, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही जनरलाइज क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्पेस के रेफरेंस में इंडिया का स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अचीवमेंट रहा है। तो अब स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट्स में आप क्या करेंगे, स्पेस जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है तो उसका क्या अचीवमेंट रहा है, आप चुपचाप उठाइए, कहाँ से, आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट से उठाइए और चलते 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 चंद्रयान 2 तक चले जाइए। और चंद्रयान 2 तक जाते जाते आप इसके बाद इसको फ्यूचर के साथ जोड़ दीजिए कि जो आप और करने जा रहे हैं, जिसमें आप चंद्रयान 3 लिख सकते हैं, गगनयान लिख सकते हैं, शुक्रयान लिख सकते हैं, निशाद प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, मंगलयान 2 लिख सकते हैं, है ना, स्पेस स्टेशन लिख सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट के साथ उसको जोड़ दीजिए। तो इंडिया का क्या अचीवमेंट रहा है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसको, और ये भी चीज़ आप चाहें तो उसको, है ना, मतलब इसमें आप पूरा का पूरा के पास अच्छा खासा पॉइंट है। इसमें आप SLV-3 के बारे में लिख सकते हैं, जो इंडिया ने पहला अपना लॉन्च व्हीकल भेजा 1983 में, जिसकी मदद से हमने रोहिणी नामक सैटेलाइट को भेजा। ये इस तरह की चीज़ें लेकर और पूरा का पूरा चंद्रयान मिशन, पहला स्पेस मिशन, यानी बहुत ही लेंदी टॉपिक हो गया, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में, इसमें क्या क्या लिखना होगा, पूरा इंडिया का स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट लिखना होगा कि भारत ने सिर्फ अपने ऑर्बिट्स में ही नहीं, रिमोट सेंसिंग ही नहीं, इनसेट जीसैट ही नहीं, जबकि उसके बाहर निकलकर आउटर स्पेस में भी मिशन भेजा, जिसमें पहला हमारा इंटर स्पेस मिशन चंद्रयान बन रहा है। वहीं दूसरा स्पेस मिशन हमारा मंगलयान रहा है, और मंगलयान हमारा पहला प्लैनेट वाला मिशन है, जो कि मून का मिशन प्लैनेट नहीं था, मून एक स्पेस बोला जा सकता है, आउटर स्पेस, लेकिन मंगलयान तो पहला प्लैनेटरी मिशन था। तो ये आपको लिखना होगा। और वो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी जो एस्ट्रोसैट भारत ने भेजा, जिसमें मल्टी वेवलेंथ बनाने वाली कंट्री में भारत दुनिया में 5वीं राष्ट्र है। तो ये सब आप यहाँ पर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी हेल्प इन द सोशियो इकोनॉमी डेवलप। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई भी जब सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, कोई भी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, ठीक है, सैटेलाइट या उसको आप स्पेस क्राफ्ट कह लीजिए, ठीक है, सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसको हम सोशियो इकोनॉमिक से कैसे जुड़ सकते। देखो ऐसा है, अगर सैटेलाइट नहीं होता, जिसमें स्पेशली मैं बात देना चाह रहा हूँ, आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। इंडिया अगर अर्थ के ऑर्बिट में बात करें तो 2 तरह के सैटेलाइट हैं, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और दूसरा जो है जिसको आप इनसैट या जीसैट बोलते हो, यानी इंडियन सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हो। ये इनसैट या जीसैट सीरीज सैटेलाइट 24/7 काम करने वाले होते हैं। अगर ये नहीं होते तो आज पूरा का पूरा सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग नहीं होता, क्योंकि आज पूरा का पूरा आपके पास, आपको बताऊं, आपके पास रीजनल GPS नहीं होते। आप जो आज GPS यूज़ करते हो ना, GPS, कौन सा GPS, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे आज आपने अपने मॉडर्न एयर ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने गगन को यूज़ किया है, वहीं देश की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने IRNSS को लगाया है ना। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ ले सकते हैं। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन यही सुधारता है, 24/7 वाला टेलीकम्युनिकेशन यही है, ठीक है। इसके अलावा अर्थ के रिसोर्सेज है ना, ये सैटेलाइट्स हो गया, सच रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक है। आपको पता होगा जो ग्रामसैट वगैरह करके जो चैनल है, ठीक है, ग्रामसैट, ग्राम के लेवल पर, इवन एजुसैट है, एजुकेशनल सैटेलाइट है ना, एजुसैट है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, पूरा का पूरा सुविधा जो होती है, सोशल डेवलपमेंट पूरा इससे चल रहा है, ठीक है, इससे चल रहा है। और सुनेगा,
रिमोट सेंसिंग की मदद से क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आप डीटीएच पूरा मैनेज कर रहे हैं ना। और सुनिएगा, रिमोट सेंसिंग की वजह से आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा मैपिंग कर लेते हैं, और मैपिंग की वजह से आप पूरा का पूरा ड्राफ्ट एरिया, फ्लड एरिया, जो भी है सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं होने वाली इकोनॉमिक लॉसेस को एक्सेस कर सकते हैं, लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को उठाइए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिख दीजिए। ओके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका जो सेकंड वाला पार्ट था दोस्त, ये 2 बार इसके पहले भी यूपीएससी में आ चुका है, और इसको फिर इस वाले क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इसी तरह से फ्रेम कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर यू मस्ट बी नो कि सैटेलाइट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस सैटेलाइट से क्या क्या काम होता है, फिर उसी को सोशल और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से जोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा गया है। Why is nanotechnology is one of the key technology of 21st century? पहला पार्ट। दूसरा, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियाज गवर्नमेंट मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री। देखिए, अगर हम की टेक्नोलॉजीज की बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी कैसे है, तो मैं आपको बताऊं कि आज नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप हुई हैं, और 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको पीछे भी बोला और फिर बोल रहा हूँ। इन 3 चीज़ों को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। पहला जिसको फ्लोरीन कहते हैं, दूसरा जिसको CNT कहते हैं, और तीसरा जिसको ग्राफीन कहते हैं। ये तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब के सब नैनो टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशंस हैं, और इन सब का यूज़ 21st सेंचुरी का यूज़ है। अभी ये चीज़ें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, और जैसे जैसे चीज़ें और विकसित होंगी, 21वीं सदी जो 21st सेंचुरी है, नैनो टेक्नोलॉजी को बूम जो मिलेगा वो इन चीज़ों की मदद से मिलेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों के अगर एप्लीकेशंस को आप जानते हैं, तो इन एप्लीकेशंस को लेकर आप कह सकते हैं कि इन पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं, और आगे भविष्य में हम इनको भविष्य लक्षित यानी 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के रूप में देखे जा सकते हैं। यही फ्लोरीन है जिसकी मदद से आप ड्रग थेरेपी कर सकते हैं, ड्रग टारगेटिंग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कैंसर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं फ्लोरीन की मदद से किसी दवा को आप बॉडी के अंदर इफेक्टिव जगह तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कैंसर की थेरेपी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यही फ्लोरीन है जिसकी मदद से आप प्रोटेक्टिव IVR ग्लासेस बना सकते हैं। यानी ये सारा का सा फ्लोरीन आपका आप स्किन क्रीम लोशन टाइप का बना सकते हैं, अपनी बॉडी को स्किन को अल्ट्रावायलेट लाइट से बना सकते हैं। यही CNT है जैसे काफ़ी ड्यूरेबल आप ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं, काफ़ी आप इसकी मदद से आप चाहें तो हल्के हल्के बाइसिकल्स बना सकते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ वाले होंगे। सैटेलाइट्स वगैरह में हम CNT को यूज़ कर सकते हैं, उसका वेट भी कम होगा, काफ़ी ड्यूरेबिलिटी होगी। ग्राफीन के भी मल्टीपल यूजेस हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। यहाँ तक कि ग्राफीन तो ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जो कि डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ग्राफीन वगैरह को भी ट्रांजिस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ग्राफीन वगैरह को भी हम लोग इसको एक्टिव मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डिस्टिलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस है, मैं आधे घंटे आपको बोलता ही रहूँगा, लेकिन मैंने आपको की पॉइंट्स दे दिया। इन 3 के एप्लीकेशन को पकड़िए, 21st सेंचुरी की ट्रीटमेंट को लिख दीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी को हम मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं। पीछे भी बोला था नैनो बोट्स तरह की चीज़ें बनी हैं। नैनो बोट्स एक तरह का आप AI भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, बॉडी के अंदर जाकर पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग कर लेता है। कहाँ पे बॉडी में एब्नॉर्मलिटी बनती है वो आइडेंटिफाई कर लेगा। बॉडी के अंदर आर्टरीज में कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा है उसको क्लीन कर देगा। तो इस तरह की चीज़ें हम नैनो टेक्नोलॉजी को 21st सेंचुरी में आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसका जो साइलेंट फीचर है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिशन ऑफ नैनो, अब गवर्नमेंट क्या क्या बताता हूँ, गवर्नमेंट जो है नैनो टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेकर आया, नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेकर आया, नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेकर आया। ये नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2000 के आसपास लाया गया, ठीक है, 2000 के आसपास लाया गया। यहाँ पर सरकार ने नैनो टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लाया। काफ़ी हद तक बड़े लेवल पर चीज़ आगे बढ़ी। फिर सरकार ने इसी को नैनो इनिशिएटिव है ना, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव NSTI करके ला दिया, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लाया, जहाँ पर सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दी, 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दी, DST के द्वारा ये चीज़ लाई गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें नैनो मिशन लाए गए, नैनो मिशन के अंदर क्या हुआ, डिफरेंट तरह के ग्रुप बनाए गए, ठीक है। जैसे एक आपका नसक बना, एक आपका नतक बना, है ना, नसक बना, नतक बना, है ना, ये नतक बना। इन सब के द्वारा हमने क्या किया, इसको मैनेज करने की कोशिश की। उसके बाद सरकार ने क्या किया, इवन इतना ही नहीं दोस्त, आपको बताऊं इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए आपको बताऊं कि बेंगलुरु नैनो करके, ठीक है, बेंगलुरु नैनो करके, ठीक है, एक बाइनियल जो होता है इवेंट्स हुआ, एक साल में 2 बार इवेंट्स हुआ। यहाँ जो डेलीगेट्स होते थे वो आते थे, उनके साथ डिस्कशंस होता था कि नैनो टेक्नोलॉजी पे क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उससे लेकर। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने तो इंटरनेशनल लेवल पर IPSA के साथ भी काम, IPSA का मतलब होता है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये IPSA करके ग्रुप भी है जहाँ भारत काम कर रहा है। तो ये आपको पूरा का पूरा स्कोप और एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ द कंट्री, ये इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं कि इंडिया में किस किस तरह के मिशंस हैं और इनको किस तरीके से एप्लीकेशन में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
नाउ द नेक्स्ट ईयर इज 2015 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसपीएस, मतलब स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम एंड प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम इन द जीपीएस एरा। तो एसपीएस क्या है और पीपीएस क्या है जीपीएस की टेक्नोलॉजी में। और फिर कह रहा है डिस्कस द एडवांटेज इंडिया परसीव फ्रॉम द एम्बिशियस आईएनएसएस प्रोग्राम बाय इम्प्लाइंग जस्ट द 7 सैटेलाइट। जो 7 सैटेलाइट्स इंडिया अप्लाई कर रहा है आईएनएसएस के केसेस में, उसका क्या परसीव्स है, क्या इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा है, आपको बताऊं कि पूरी कहानी शुरू होती है कारगिल वार से। कारगिल के समय में इंडिया के पास अपना कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं था जो कारगिल के एरिया को देख ले सैटेलाइट्स की मदद से। और कारगिल में था क्या कि जो पाकिस्तानी बंकर्स थे वो पहाड़ी एरिया पे थे, हिली एरियाज पे थे, और हम लोग थोड़ा डाउन साइड थे, क्योंकि ठंडी में हम उस एरिया से नीचे आ जाते थे, और पाकिस्तान वाले आके इन एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्या करें, हमको नीचे से ऊपर वार करना बड़ी डिफिकल्ट। अभी विक्रम बत्रा पे मूवी भी आई, अगर आपने देखा होगा तो समझ सकते हैं, नीचे से ऊपर वार करना बड़ी दिक्कत होती है, और ऊपर से नीचे लोग देख रहे होते हैं। तो हमने कहा अमेरिका ऐसा करो, तुम अपना जो एक नवस्टार है, नवस्टार क्या था उस समय, दुनिया का पहला ग्लोबल जीपीएस था जो अमेरिका ने इंस्टॉल किया था 1970s के आसपास। तो भारत ने ऐसा है, तुम अपने नवस्टार की मदद दे दो, हमको ये जानना चाहते हैं ये कहाँ है, लेकिन अमेरिका ने आपको रिफ्यूज कर दिया। तब आप जगे कि यार हमारे पास ना कुछ अपना होना चाहिए। वो अलग बात है कि इसको 2006 में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करती है, और तब जाके चीज लाई जाती है। देखो हम इंडियंस के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद जगते हैं, ठीक है। वो हमेशा हम इंडियंस के साथ शुरू से रहा है, ठीक है। चाहे वो 2006 का चाहे वो कारगिल वाला इंसिडेंस हो जिसमें हम काफ़ी अपने सैनिकों की जान बचा सकते थे, चाहे वो आप पठानकोट वाला इंसिडेंट देख लो, यानी जनरली हम लोग के साथ ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन शुक्र है कम से कम बाद में ही जाते। तो वही 9 स्टार वाली जो दिक्कत हुई थी, हम लोगों को नहीं सर्विस मिली थी, तो 2006 में भारत सरकार क्या करता है, आईएनएसएस प्रोजेक्ट लाता है। ये कहानी पूरी यहाँ से जुड़ती है। आईएनएसएस के अंदर टोटल 7 कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स को लगाने की बात कर दे, यहाँ लिखा हुआ है। इन 7 सैटेलाइट्स को एक साथ लगाकर 3 को हम जीईओ में लगाते हैं, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लगाते हैं, और 4 सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे लगाया जाता है। वही जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो थोड़ा इलेप्टिकल पाथ होता है, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो पूरी तरह से सर्कुलर पाथ होता है। यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट होता है 36,000, यहाँ पर लगभग 36,000 के साथ प्लस माइनस थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है, ये टाइम स्पेसिफिक होता है। ये चीजें फिलहाल मैं आपको स्टैटिक में समझाता हूँ। जियोसिंक्रोनस, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये तीनों चीजें क्या होती हैं। वहीं पर आपको पोलर और पोलर सिंक्रोनस ही बताता हूँ व्हाट आर दिस, बट वो स्टैटिक टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन 7 की मदद से क्या होता है, मान लो ये पूरा का पूरा इंडिया है। इंडिया होता क्या है, ये मान लो ईस्ट वाला पार्ट है, ये मान लो वेस्ट वाला पार्ट है, ये मान लो नॉर्थ वाला पार्ट है, मान लो साउथ वाला पार्ट है। पूरे इंडिया को तो कवर करते हैं। पार्ट ऑफ इंडिया का, इस इंडिया के बॉर्डर से लगभग 1500 किलोमीटर तक का पूरा डिस्टेंस हम एक अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जैसे मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, ये कोस्टल एरिया, इंडिया श्रीलंका, ये सारा का सारा हम नज़र रख सकते हैं। जो लैंड बाउंड एरियाज है वहाँ पे रिजोल्यूशन थोड़ा अच्छा होता है 10 मीटर का, और जो ओशन वाले एरिया जो नीचे देख रहे हैं ना, ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे 20 मीटर का रेजोल्यूशन रखते हैं। 20 मीटर का रिलेशन जो होता है वो 10 मीटर से थोड़ा खराब होता है, पर फिर भी इससे हम काफ़ी एक्टिविटीज़ को देखकर देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो पूरा इंडिया ही नहीं दिखता, बॉर्डिंग एरियाज भी कवर होता है। तो आपको एडवांटेज समझ में आ गया कि इससे क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं, दैट यू पीपल अंडरस्टूड। असल में जो एसपीएस है ना, वो सिविलियन के लिए होता है। एसपीएस जो है वो सिविलियन यूज़ के लिए होता है, और जो प्रिसीजन होता है ना, वो डिफेंस के लिए होता है। ये डिफेंस के लिए होता है ना। तो ये सिविलियन के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है। तो सिविलियन आपको समझ में आ गया, मतलब जनरल आप लोग, पब्लिक, आम गाड़ियों में, इस तरह की चीज़ों में। और डिफेंस आपको क्या होता है, जो आपकी मिलिट्री वालों के लिए होता है, जैसे देश की सुरक्षा के लिए, उनके लिए होता है। अभी फिलहाल अब इसको उस समय के हिसाब से तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सुनने में आ रहा है क्वेलकम टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्वेलकम, QUALCOMM है ना। क्वेलकम टेक्नोलॉजी का एक कंपनी है जो चिप फैब्रिकेटिंग का काम करती है, और वो आईएनएसएस की सुविधा आपको इंडिया में देने वाली है। चिप्स वगैरह के थ्रू आपको हो सकता है इंटरनेट या इस तरह की सुविधाएं भी दे। तो ये तो नया करंट अफेयर्स है, उस समय ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर आपने साइंस एंड टेक की बुक पढ़ी होगी तो आईएनएसएस में मैंने ये चीज़ भी दी है नए अपडेशंस में, ठीक है। फिलहाल वीडियो आज के रिस्पेक्ट पर आ रहा हूँ, थोड़ा मैं उसको करंट के साथ जोड़ देता हूँ। आई एम वेरी श्योर यू पीपल वेरी क्लियर इन द केस ऑफ एसपीएस एंड पीपीएस। पीपीएस वाला जो होता है ये इंक्रिप्टेड होता है, और इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि वो काफ़ी सेफ और सिक्योर होता है। ओके, दैट इज मोर सेफ एंड सिक्योर, यू मस्ट बी क्लियर इन द केस ऑफ इंक्रिप्टेड। आइए
The next discussion I'll do here, guys. That is the questions here. The second one, what are the areas of prohibitive labor that can sustainably manage by the robots? तो कहाँ पर हम prohibitive labor की तरह robots को use कर सकते हैं, है ना? किन किन क्षेत्रों में, किन किन areas में? The first part. The second part discuss the initiative that can propel the research in the Premier Institute for the Sustainable and Gainful Innovation. So ये तो पूरा का पूरा fact हो गया था second one, कि कहाँ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में हम लोग रोबोट्स को कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या गेनफुल इनोवेशन है. लेकिन पहला वाला जैसे पार्ट है, कहाँ पर हम प्रोबेटिव लेबर के फॉर्म में हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं, किन किन एरियाज में. देखो ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर आप रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं. ओके, पहले तो बताऊँ, रोबोट्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है रोबोटो. और रोबोटो का मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है इट्स अ सेल्फ लेबर. रोबोटो का मतलब होता है इट इज़ अ सेल्फ लेबर. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोबोटो? रोबोटो मीन्स सेल्फ लेबर. एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन बनाता है, उसकी प्रोग्रामिंग करता है और उसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेसी रिलायबिलिटी काफ़ी बेहतर होती है, वो एक रोबोट है. ओके, और रोबोट कुछ नहीं तो एक AI होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके अंदर एक ब्रांच है रोबोट्स जो उसके अंदर कंसिडर किया जाता है. इसके बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर रोबोट्स को देख सकते हैं. आप इसको डिफेंस में देख सकते हैं, है ना? आप इसको मेडिसिन में देख सकते हैं, आप इसको इंडस्ट्री में देख सकते हैं, आप इसको इन्वायरमेंट में देख सकते हैं. मैं आपको कुछ डायमेंशन दे रहा हूँ किन किन एरियाज में प्रोबेटिव लेबर की तरह हम रोबोट्स को मैनेज कर सकते हैं. तो डिफेंस में जैसे आपने ह्यूमन को भेजा, आप उसकी जगह को रोबोटिक सोल्जर्स बना दीजिए. जैसे NSTI जो इंडिया का जो पॉलिसी है, वहाँ पर हम लोग का क्या टारगेट, हम लोग का टारगेट है कि हम लोग रोबोट्स को जो है बैटल फील्ड में भेजें बाई 2035. बहुत बढ़िया. इसके अलावा डिफेंस में आप कोई जैसे माइंस को हटाना है, इवन टलॉन आपने बनाया है, एंड्रॉस बनाया है, मिनी एंड्रॉस बनाया. आपने बुक पढ़ी होगी मेरी, तो आप जानते हैं, जिसमें हमने बम स्क्वैट्स के लिए यूज़ किया है, बम डिस्पोजल के लिए यूज़ किया. इस तरह से आप यू पीपल कैन यूज़ इट फॉर डिफेंस पर्पसेस. मेडिसिन पर्पसेस में जैसे मैंने आपको बोला था, एक दा विंसी सर्जिकल सिस्टम करके, द विंसी सर्जिकल सिस्टम. आई होप यू रेड माई बुक गाइज. प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ रीड द बुक, है ना? आपको ये चीज़ें एक जगह उस बुक में मिल जाएंगे. यू विल नॉट हैव टू डू मोर एंड मोर वर्क. द विंसी सर्जिकल सिस्टम है, एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है. आप इसे ऑपरेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. इवन अमेरिका का डॉक्टर इंडिया में ऑपरेशन कर सकता है इसकी मदद से, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, है ना? ये क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्रीज में जैसे आप देखो, जो डब्बा बंद प्रोसेस होता है, जो केन्ड प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा ह्यूमन से बेटर डब्बा बंद प्रोसेस मशीन करती है. इवन जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सारा का सारा मैनुअल कार से अच्छा जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप देखते हो ना, मारुति वाला, गुड़गावा चले जाइए, या इस तरह की हजार गाड़ियाँ, वो सब मशीन नहीं, वो एक तरह के रोबोट्स हैं, है ना? केन प्रोसेस है. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो बनाते हैं, PCB जो बनाते हैं, छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, सब रोबोट्स हैं. इन्वायरमेंट में देखिए, इन्वायरमेंट वगैरह में भी आप जैसे एक तरह से ये क्या होता है, ड्रोन्स टाइप की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह के रोबोट्स होते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपने रोवर्स वगैरह भी, जब मैंने आपको चंद्रयान मिशन में बोला था, तो मैंने कहा था देखो ये रोवर्स भी जो होते हैं ना कहीं ROVER रोवर, है ना? ये जो रोवर होते हैं, ये भी पीछे मैंने आपको चैंग मिशन में U22 वगैरह रोवर पढ़ाया है, जो मून के सरफेस पे उतरा था, ठीक है, वॉक किया था. तो वो रोवर भी एक तरह के पहिए लगे होते हैं, वी रोवर होते हैं, ये भी एक तरह के रोबोट्स होते हैं. फिर कह रहा है कि डिस्कस इनिशिएटिव दैट रिसर्च इन द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ सस्टेनेबल इनोवेशंस. तो क्या क्या इनोवेशंस हुए? तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे, जैसे रोबोग्रेड करके एक कंपनी है, उसने बनाया है, ठीक है. रोबोग्रेड करके कंपनी है. भारत में देखो तो जो IITs हैं, IITs हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रोबोटिक्स उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है. इस तरह से करके फिर सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स मैक्नोट्रॉनिक्स, है ना? सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स, है ना, मैकेनोट्रॉन. इस तरह करके कानपुर में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनाया गया है. तो बहुत सारे इस तरह के आपको पूरे के पूरे फैक्चुअल डेटाज है. एक बार आप बुक देखिएगा, सारे के फैक्ट में से कुछ फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ दे दिया है. इसके अलावा भारत में भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया, अक्यूट करके, ठीक है. तो यू मस्ट हैव टू सी इट. ओके, ये पूरा का पूरा सेकंड पार्ट इज अ फैक्चुअल. इवन फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो फैक्चुअल. एक बार आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. भारत के रेफरेंस में अगर थोड़ा तो दक्ष वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, है ना, जो इंटेलिजेंट रोबोट्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. बिग डॉग करके रोबोट बना है, ठीक है, वो कर सकते हो. चतुर रोबोट जो बना है वो बता सकते हो. इस तरह से देयर इज अ लॉट ऑफ द इनोवेशंस दैट हैपन इन इंडिया इन दिस रिगार्ड आल्सो. देखो ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसको ठीक पीछे भी पढ़ाया था. मैंने कहा था ये क्वेश्चन UPSC के मेंस में पूछा गया 15 में. क्या है पूछा गया? इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी. ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया, और एक क्वेश्चन आपके पेपर में 18 में भी मेंस में भी रिपीट हुआ था.
सो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में, विच हैज़ अ डेटाबेस कंटेनिंग फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन ऑन मोर देन 2 मिलियन मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस प्रोवाइडिंग अ पावरफुल वेपन इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द ईरान में पेटेंट। वहाँ पे भी यही था कि जो कंपनियां थी वो जो भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज है उनका पेटेंट ले रही हैं फटाफट, ठीक है। एंड डिस्कस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ मेकिंग दिस डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल अंडर ओपन सोर्स लाइसेंसिंग। असल में क्या है कि भारत के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अगर वो मेडिसिनल प्लांट जो भारत के नेटिव्स हैं, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा कि नीम प्लांट्स को लेकर, टर्मरिक को लेकर भारत काफ़ी दिन तक फाइट किया इसके पेटेंट को लेकर यूएस के साथ, क्योंकि यूएस को भी पता है कि नीम और टर्मरिक का अच्छा खासा मेडिसिनल यूजेस है। लेकिन भारत फिलहाल इसका पेटेंट जीत चुका है कि ये प्लांट भारत के। अब इन प्लांट्स के जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी खोज किसने बताई? सबसे पहले भारत ने बताई। तो भाई ये नॉलेज सबसे पहले किसका है? भारत का है। प्लस उसके फार्मूलेशन के बारे में किस किस प्रपोर्शन में हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे जिसकी वजह से ये अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाए। जैसे टर्मरिक के अंदर कुरकुमिन नामक एक केमिकल होता है जिसको हम लोग एंटी कैंसरस की तरह यूज़ करें। भाई तो ये सबसे पहले नॉलेज किसने बताया? भारत ने बताया। तो ये केमिकल इंग्रेडिएंट्स, इनका फार्मूलेशन, ये सारी जानकारियों को हम TKDL प्लेटफॉर्म पे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, इस पर रख सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक को मैंने ICT में रखा है, ना कि पेटेंट पर। इसको मैंने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर में डाला है, ना कि पेटेंट में डाला है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको पेटेंट में ये मदद करेगा कि ये जानकारी सबसे पहले भारत की है। तो भारत कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रूफ करता है। तो प्रॉस ये हो गया कि आप इनसे पेटेंट ले सकते हैं, आप इनके बारे में बता सकते हैं कि सबसे पहले इसकी स्टडी आपके यहाँ हुई है, कौन सी है कि आप जो सारी जानकारी दे रहे हैं चोरी छुपे इसकी मदद से लोग उसके इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉस, क्योंकि आपने ओपन एक प्लेटफॉर्म करके TKDL बना दिया है। और इस बारे में मैंने आपको आगे भी बताया, इसके ठीक पहले का वीडियो आप पढ़ना। इसको लाने वाला जो था वो CSIR था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और आयुष मिनिस्ट्री थी। ये दोनों ही मिलकर इसको लाते भी हैं। अगला आते हैं 2014 का क्वेश्चन पेपर। ओके, 2014 में पहला क्वेश्चन है, साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इज डिक्लाइनिंग बिकॉज अ करियर इन द साइंस इज नॉट एज अट्रैक्टिव एज अ बिजनेस प्रोफेशन, इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड इन द यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग द कंज्यूमर ओरिएंटेड, क्रिटिकली कमेंट। फिलहाल इस केसेस में तो मैं खुली तरह से कोई भी सरकार है पिछले 70 सालों में मैं सबको लपेटे में ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना ज़्यादा बहस हो के हम नहीं लिखेंगे, जो कि आप यू पीपल एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जा रहे हैं और आप सरकार को अगर बेइज्जत करेंगे तो फिर आप कैसे वहाँ पे क्रेडिट लेंगे अपनी, ठीक है। आप तो उन्हीं सरकारों की चीज़ों की जो रूल रेगुलेशन हो रहे हैं उनको आप फॉलो कराने जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। लेकिन तो मैं अगर इस क्वेश्चन को बताऊँ तो हर सरकार को लपेटे में ले सकता हूँ, चाहे वो पीछे की सरकार रही हो, चाहे वो आज की सरकार हो, और यहां तक चाहे आपके घर की बात करूं या सबकी बात करूं, ये साइंटिफिक रिसर्च इंडिया में क्यों है, इसके पीछे कोई एक बंदा नहीं है, पूरा का पूरा सोसाइटी है, पूरा का पूरा सरकार है, पूरी की पूरी लॉबी है जो नहीं चाहती असल में, जो मैं बताऊं, कि साइंटिफिक रिसर्च इंडिया में अच्छी तरह से। इवन पीछे की गवर्नमेंट ही आपको बता। अच्छा एक बात बताओ कि रिसर्च के लिए क्या चाहिए? रिसर्च के चाहिए ले ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को काम करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस। रिसोर्सेज के लिए क्या चाहिए? फंडिंग। तो देखिए आपने आंसर जोड़ दिया। किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए ब्रेन, ब्रेन के लिए चाहिए रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए फंडिंग, और चौथी चीज़ हमें चाहिए मोटिवेशन, ठीक है। ये चारों चीज़ें मिलकर होती हैं कहीं पर रिसर्च। लेकिन ये चारों चीज़ें आज कहीं रिसर्च में है ही नहीं। ये चारों चीज़ें आज कहाँ हैं? आपको प्रोफेशनल जॉब में है, चल कोई प्रोफेशनल जॉब कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। ये सारी, इवन जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं ना, उनके पास भी क्या है, 4 टीने का यूनिवर्सिटी बनाकर, या यूनिवर्सिटी भी है, रिसोर्सेज है ही नहीं। हमारे यहाँ सारी की सारी इंजीनियरिंग स्टडी भी थियोरेटिकल होती है ना, इंटरेस्टिंग। तो सर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो कि पूरा प्रैक्टिकल है उसमें भी काफ़ी हद तक थियोरेटिकल होता है। आप लोग काफ़ी चीज़ों को सिर्फ थियोरी और पेपर लिख कर चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसको सोचना होगा, उस तरह काम करना होगा। आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए ब्रेन यहाँ से बाहर कंट्री में चला जाता है और ब्रेन ड्रेन हो जाता है, ठीक है। और सही बात है, अगर वो इंडिया में रहेगा तो ऐसे ही उसका ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। और वैसे भी वी पीपल आर द कंडीशनल इंडियन। वही खुराना जब इंडिया से बाहर जाते तो इंडिया के नहीं है, लेकिन जब उनको नोबेल प्राइज मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हम उनको इंडियन बोलने लगते हैं। हम ऐसे ही भारतीय होते हैं, ठीक है। फिलहाल ऐसे मत अपोज कीजिएगा, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, अच्छे खासे लैब है नहीं। एक DNA फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट करना है, कई महीने लग जाते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये इंटरनेशनल लेवल के ब्रांडिंग आपके अच्छे खासे लेबोरेटरी रिसोर्सेज नहीं है। फंडिंग सरकार देती नहीं। पहले की जो गवर्नमेंट थी वो भी लेस देन 1% ऑफ GDP थी,
लेस देन 1% ऑफ जीडीपी जो थी वो आपका सरकार खर्च करती थी, ठीक है। मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह के टाइम में 0.8-0.9% था जीडीपी का, ठीक है। और मोदी जी के टाइम में आते उसको और कम करके 0.6-0.7% कर दिया। मतलब लिए धरे के मैंने पूरा सारी की सारी सर, कभी किसी का दिमाग यहाँ नहीं जाता कि 70 साल के बाद भी हमें राफेल आज भी भिखारियों की तरह खरीदना पड़ता है, ठीक है। आज हर किसी के सरकार के पीछे ये जाता है कि हमने राफेल के अंदर सौदेबाजी नहीं की, हमने राफेल को सस्ता ले आया, पीछे गवर्नमेंट करप्शन कर रही थी, नहीं ये गवर्नमेंट दूसरी, ये सारे के सारे 70 साल के बाद सबका दिमाग यहीं पर है कि भैया राफेल हम सस्ता लाए, क्रेडिट लेने के पीछे आज कलाम सर जैसी सोच वाले या है ना अटल जी जैसे सोच वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे कि हम क्यों 70 साल के बाद भी भिखारियों की तरह मांगे, हम अपना राफेल क्यों ना बना लें। यहां पर काम करना होगा दोस्त, नहीं तो हम जिंदगी भर, एक दिन देखना ऐसा भी हो सकता है कि हम चाइना से वही मिसाइल खरीदें और उसी मिसाइल को चाइना के विरुद्ध प्रयोग में लावें। ये हंसी की चीज़ नहीं है, ये सोचने की चीज़ है। फिलहाल मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ले गया, जिन बातों को यूपीएससी से लेना देना है नहीं, लेकिन हकीकत से लेना देना से मैंने आपको बता दिया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। आप मुझे बताइए सोसाइटी में आप कितना सम्मान देते हैं किसी साइंटिस्ट को? सर कुछ नहीं देते सर। आप एक बात बताइए कि साइंटिस्ट को कितनी सैलरी देते हैं आप? 60,000, 70,000? ये बताइए। अब ये साइंटिस्ट जब बाहर जाता है तो डॉलर्स और यूरोज में कमाता है, कई करोड़ उसकी सैलरी भी होती है। फिलहाल ये सैलरी को तो बहुत बड़ी छोटी चीज़ होती है, आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा इलेबरेट करके नहीं ले सकते, लेकिन सच्चाई तो है, समाज में इज्जत कितनी है, बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी कितनी है, पैसा कितना है, रिस्पेक्ट कितना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, रिसोर्सेज कितने हैं साइंटिस्ट को काम करने के लिए, सरकार का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कितना होता है, ये सारी चीज़ें। और यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मैं बताता हूँ दोस्त, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले ज़माने में जब मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने, हमारे पिताजी बोले कि भाई देखो इतना पैसा नहीं है कि मैं तुमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाऊंगा, तो मेहनत करो, IIT निकाल लो, जाओ वहाँ गवर्नमेंट में पढ़ाई करो, फीस नहीं होती। लेकिन आज आपको बताता हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, प्राइवेट की बात करें, सारी फीस जो है देखिए लिखा है, यूनिवर्सिटीज ऑफ बिकमिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड, पैसा कमाने का धंधा बन गया है, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ें कितना मैं ओपनली बोलूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती इस प्लेटफॉर्म पर अगर यूट्यूब पे जाके बोलना, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ ये धंधेबाजी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पहले सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती थी वो इसलिए लोग गरीब के बच्चे पढ़ते थे क्योंकि उनको पता था मेहनत करके यहाँ पहुँच जाएंगे, फीस कम होती। आज तो IITs वगैरह में बच्चा, तुम लोग को बताऊँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब घर के भी बच्चे हैं, मिडिल क्लास के भी, फीस नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग लोन पर पढ़ाई करते हैं। IITs में तो फिर भी लोन मिल जाता है कि भैया IIT से है तो बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सोचो क्या बुरी हालत है यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये कितना मतलब इमोशनल एक एग्जामिनर था, इसने क्वेश्चन बनाया है, शीशो कई डायमेंशन के साथ टच किया है, तो हैट्स ऑफ फॉर दिस क्वेश्चंस, इतना बढ़िया क्वेश्चन सोचने के लिए। एक मिनट बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको लगता है कहीं लिखा है किसी न्यूज़पेपर में आएगा? नहीं मित्र, यही मैं बता रहा हूं, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाओ, क्वेश्चन को सोचो समझो, और बहुत दिमाग में इतना पावर है ना, ये सारी नॉलेज जो मैंने आपको दी आप सब सोच सकते थे, बस दिमाग को रोकिए नहीं। यूपीएससी में इसको पढ़ने के बाद खूब चुपचाप बैठिए और खूब सोचिए कितने डायमेंशन तक आप जोड़ सकते हैं। इस तरह के आंसर आप तभी लिख पाएंगे। इस पूरे आंसर की डिस्कशंस की ब्यूटी क्या है मैं आपको यही बता रहा हूं, और बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रहा है, कैन ओवर यूज एंड द फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस बी द कंट्रीब्यूटर्स टू द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेज इन इंडिया? ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर के उससे, है ना। और एक तो ज़्यादातर ये एंटीबायोटिक आसानी से अवेलेबल है, आप सब धड़ल्ले से एंटीबायोटिक ले रहे हैं जिससे ड्रग रेजिस्टेंस का केस बन रहा है। पहली चीज़, व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्रिटिकली डिस्कस द वेरियस इशूज इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन पूरी तरह से ड्रग रेजिस्टेंस का है, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको बताता हूँ, बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और सही बताऊँ तो आज जो दवाइयाँ आपको बताता हूँ जो आपके शरीर में काम नहीं करती हैं, पहले उन्हीं दवाइयों से आप लोग ठीक हो जाते थे, इसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद हैं। यू पीपल आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। कैसे है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आप खुद डॉक्टर के पास जाते, कहते डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दो। डॉक्टर का भी बिजनेस है, उसको भी पता अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम दिस पेशेंट विल नॉट किल मी। वही कम डोज पे मेडिसिन पर आप 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, हाई डोज का मेडिसिन देकर डॉक्टर आपको 2 दिन में ठीक कर देता है। तो हाई डोज का मतलब होता है जो पैथोजन आपको बीमारी डाला था या फीवर डाला था, कोई बीमारी थी, अब वो हाई डोज पर जाकर इम्यून हो रहा है, तो नेक्स्ट बार वही बीमारी होती है तो उतने मेडिसिन पर उसको इफेक्ट ही नहीं होता, और हो सकता है उससे ज़्यादा मेडिसिन पर भी ज़्यादा दिन तक डोज चलाने के बाद भी वो इफेक्ट ही ना हो। छोटी छोटी बात पर आप जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में पैथोजन्स को आप इम्यून कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है, कहीं फोर्सिबली दवा का लेना, पूरा कोर्स ना कराना, ईजिली एंटीबायोटिक ईजिली ड्रग वगैरह का अवेलेबल हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं इस तरह की केसेस हैं जो आपको इन सब तरह की बीमारियों की तरफ ले जाती हैं।
अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि अगर आपको ड्रग रेजिस्टेंस का केस वाला ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो आपको प्रभु भी नहीं बचा सकते। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। एमडीआर वाला केस अक्सर सुनने में आता है, एक्सडीआर का केस आता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस था, फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में जो दवाइयाँ थी उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो गया, फिर एमडीआर प्लस लाया गया, एमडीआर प्लस के बाद एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस की बात हो रही है, और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस का अगला केस क्या बनेगा, एसडीआर प्लस का बनेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये पूरा का पूरा जो क्रिटिकल है, डिस्कस है, पूरा मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, ये किस तरह से गलतियां हो रही हैं। तीसरा चीज आपके पेपर में पूरी तरह से आईपीआर पे क्वेश्चंस है। इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज्यूम द सिग्निफिकेंस आर अ सोर्स ऑफ लिटिगेशन। डेफिनेटली गाइस, आपके जो ब्रेन का क्रिएटिवनेस है, ठीक है, जो आपके ब्रेन की उपज है, आपकी पूरी की पूरी लाइफ की मेहनत है, ठीक है, उस पर आपका एक अधिकार होने का आपको पूरा का पूरा मौका देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल मतलब आपका ब्रेन क्रिएटिवनेस। इंटेलेक्चुअल चीज ब्रेन से होती है, और प्रॉपर्टी कोई होती है, कोई चीज जो अपनी होती है, और राइट्स का मतलब आपका अपना राइट। तो आपके ब्रेन क्रिएटिवनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो आपने जनरेट किया है, उस पर आपका राइट जो होता है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है। अब पूरी दुनिया में इस तरह के क्रिएटिवनेस, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसमें उस बंदे को उसका हक दिया जाता है। जिससे इस तरह के एक्सपेरिमेंट और चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, जैसे जनता के सामने और नए नए इनोवेशंस हो, एक कंपटीशन बना रहे, और लोगों को सस्ते रेट पर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाए। अब मान लो किसी बंदे ने पूरी मेहनत करके पूरी ज़िंदगी लग बनाई और दवा बनाई 70 साल की उम्र में। अब 70 साल तक उसने पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दी, जितनी भी बची की उसकी ज़िंदगी है उसको उसका एंजॉय लेने दी, उसको फन लेने दी, उसको पूरी ज़िंदगी हमने इन्वेस्ट कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं आईपीआर उन लोगों के लिए सम्मान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें उन्होंने पूछा, तो मैंने आपको सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिटिगेशन थोड़ा समझाने की कोशिश की इस तरह से, ठीक है। अब जैसे कॉपीराइट का केस है, ठीक है, कोई भी जैसे मान लीजिए एक बुक है, बुक का एक कॉपीराइट होता है, ठीक है, तो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड करना बहुत ज़रूरी है। लिटरेरी वर्क के लिए होता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है, ठीक है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, उन सबका कॉपीराइट होता है। जनरली कॉपीराइट जो होता है ना, वो डायरेक्टर रखता है। जैसे मेरी एक बुक आती है जो साइंस से की है, लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, हम लोग की किताबें मैकग्रा हिल में आती है, ठीक है, तो हम लोग की किताबों का जो कॉपीराइट है वो मैकग्रा हिल रखता है। ओके, तो कॉपीराइट मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके ब्रेन का क्रिएटिवनेस होती है, आपकी अपनी जो पर्सनल जो राइट होती है। पेटेंट जनरली जो चीज़ होती है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए पेटेंट किया जाता है, फाइन। ट्रेड सीक्रेट जो होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट्स को जो हम मार्केट में लाते हैं उसमें क्या क्या फार्मूला और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो एक तरह के ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। उन चीज़ों को कोई और कंपनी नहीं यूज़ कर सकती, उसका कोई भी मिस यूज़ नहीं कर सकती। तो ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस क्या होते हैं। याद रखिएगा, पेटेंट हमेशा इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए होता है। ट्रेड सीक्रेट कोई रेसिपी है या कोई चीज़ है, जो रेसिपी वगैरह जो आप बनाते हैं किसी प्रोडक्ट्स के लिए, वो एक तरह का ट्रेड सीक्रेट्स है, ठीक है। और ये आपका लास्ट में फिर वही जो 11 चैप्टर्स जो मैंने आपको बोला था, चाहे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो या मेन से क्वेश्चन हो, इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, इसी 11 चैप्टर से ही क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। और अंत में चल देते दोस्त, 19 जनवरी को यूपीएससी का एक ऑफ़र है, जो ध्यान रखिएगा, जो एंड हो रहा है, जो एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है, ये 18 मंथ्स का पूरा कॉम्बो कोर्स है। इससे सस्ता कोर्स आपको यूपीएससी के लिए नहीं मिलेगा। 19 जनवरी वॉज द लास्ट डेट, ओके। इसमें आपको पूरी बुक्स, पूरा 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिला के 18 मंथ का आपको कॉम्बो प्लान है, और पूरी टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। दैट विल बी एनफ फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर 2023। ये यूपीएससी सीएससी का मेगा कॉम्बैट है, जहां पर आपको 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने होते हैं। द नेक्स्ट यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट इज बीइंग ऑन 25 जनवरी 11 AM. डोंट मिस दिस गाइज. A lot of prizes you will achieve there guys, and the test will be in the हिंदी and इंग्लिश बोथ मीडियम। ये लाइव टेस्ट होगा, और यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करेंगे तो यू विल गेट योर डिस्काउंट ऑल्सो। और आगे बढ़ते हैं, ये फ्री मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी के लिए हो रहा है, और इसकी डिस्कशंस भी हो रहे हैं, जहाँ पर साइंस एंड टेक की प्रैक्टिसेस के लिए मैं खुद आ रहा हूँ, इवन अ पार्ट ऑफ अदर फैकल्टीज और ऑल्सो कनेक्टिंग विथ यू, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पर ये आपका एक यूट्यूब चैनल है जो बाइलिंगुअल और हिंदी मीडियम में दोनों में है। यहाँ पर एक्चुअल में ये ऑप्शनल चैनल्स हैं, ऑप्शनल कोर्सेज को लेकर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर है, और यहाँ यूपीएससी सीएससी 2021 के पेपर भी डिस्कशन
हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको अनअकैडमी पे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से आपको दिए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल जाती है। इवन आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, जहाँ पे एक ट्यूटर आपकी हेल्प करेगा। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है, अगर यू हैव अ फाइनेंशियल क्रंच इन द केस ऑफ कोविड एंड ऑल, तो यू कैन गेट सम बेनिफिट्स ऑल्सो इन दीज केसेस। अनअकैडमी पर आपके सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए भी, और इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो अगला स्लाइड है उसमें आपको ऑप्शन के लिए भी बताया गया है। तो उसमें प्लस और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं, आप जो भी कंफर्टेबल ले लीजिए। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे, चाहे आप जनरल स्टडीज़ का या फिर ऑप्शनल का कोर्स लेते हैं, 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। दिस द कोर्सेज दैट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द 19 जनवरी गाइस, ओके। और ये मेरा कोर्स है जो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों ही लेकर मैं आपको प्लस पर मिल जाऊंगा, ओके। इन्वायरमेंट दोनों लेकर मिल जाऊंगा। 21 दिसंबर से पूरा कोर्स स्टार्ट हुआ है। प्लस कोर्सेज पे साइंस टेक की क्लासेस अभी चल रही हैं। आफ्टर इट आई विल स्टार्ट द इन्वायरमेंट गाइस। और साइंस टेक और इन्वायरमेंट को मिला लीजिए तो 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीलिम्स में आ जाते हैं। 20+ बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जस्ट लिसन मी, रीड माई बुक्स एंड फॉलो माई ऑल द करेंट अपडेट्स हियर गाइस। दिस इज द कोड दैट यू पीपल यूज इट, एंजॉय योर concession service. This is a Telegram platform where you can find all the PDFs that I told you earlier guys. और इन अकेडमी पर मेरा चैनल है जो अल्टीमेटली अपनी प्रोफाइल पर, जहाँ पर मेरी प्लस और स्पेशल क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस में बायोलॉजी सेशन के काफ़ी लेक्चर्स मैंने कवर कर दिए, जहाँ 9 o'clock में आप सबके साथ लाइव मिलता है, स्पेशली बायोलॉजी के टॉपिक्स को कंप्लीट करने का। रवि यूपीएससी मेरा पासकोड है, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक एवरीवन। चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस बजर इस घंटे को बजाना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और मेरी पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।